Hello, am I audible? Yes, you are. Okay. Assalamu alaikum, everyone. My name is Amna Inayat. I am a local public health officer and external affairs assistant to NOR. I welcome you all to this webinar. We have two amazing speakers with us today. One is Dr. Kainat Javed, Director, Department of Medical Education, RLMC, and Dr. Arisha Arif, who has passed her PLAB 1 and is going to give her PLAB 2 inshallah in 3 months and is currently working as a demonstrator in DME. I hope this webinar is fruitful for you guys. Now I'll hand it over to Minahil to proceed the webinar. Minahil? Hello, assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, Minahil. Okay, so this is Manahil Bint Tariq from RLMC. I'm currently a local officer of research exchange here at RLMC. So we'll do a quick energizer session first. So for energizers, you will have to describe yourself in 3 words. We'll start with me, obviously. So I'll describe myself as hardworking, straightforward, and a bit impulsive. So I'll nominate someone else now. I'll nominate Zainab Numan. Zainab, can you tell yourself or describe yourself in 3 words, please? You can either use the chat box or the mic, whichever is comfortable for you guys. All right, I think she has left. Anyone who wants to volunteer, you can raise your Yes, hand or madam. I type in want the... to volunteer. Yeah, sure. Yes, I am hardworking, sensitive, and responsible. Good enough. Please nominate someone else. Mirza Zeem. Guys, you can use the chat box as well. This is just an energizer session for 2 to 3 minutes. Sure. Iman is saying she's responsible. Okay. Perfect. Anyone else? Hello, my name is Mashaim. 3 words that perfectly describe my personality are that I am a supreme leader, I am delusional, and I have a very good best friend. Interesting. Please nominate someone else. I would like to nominate Amna. I would say that I am a responsible person and I care for people as well. और मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. Same. Anyone else? Or should we proceed with the session? I think so. We should proceed with the session. I'll hand it over to Ma'am Kainat now. Ma'am, please take over the session. All right. Thank you so much, Manahil. Am I audible? Yes, ma'am, you are. All right. Perfect. So, Assalamu alaikum all. I hope all of you are doing good. And I'm glad कि काफ़ी सारे participants ने हमें join किया है after the iftar. So, just quickly to proceed with the session. आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्टार्ट में जो मेरा वाला कंपोनेंट है उसमें मैं आपको आइडिया दूंगी कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है,
आप सीवी में किस तरह से उसको ऐड कर सकते हो और आप अपनी गूगल प्रोफाइल कैसे बना सकते हो. सो आई वुड लाइक टू आस्क कि आप में से कौन कौन लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं. यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स. All right, Ina Athar, okay. Ahmed, good. Noor Fatma, Zara, yes, perfect. Mirza, excellent. एंड आप में से किन किन लोगों ने अपनी गूगल पे प्रोफाइल बनाई हुई है? मिनाहिल, इफ यू कैन प्लीज गिव मी द होस्ट राइट्स ताकि मैं जिन्होंने हैंड रेज किया उनके हैंड वो कर सकूं. Sure, ma'am. Just a minute. Okay, so Mustajab is familiar with the Google profile. Yes, Mustajab. Enamul Haq, Muhammad Asim, Zahra Kifayat, and Noor Fatma. Yes. चलो परफेक्ट. सो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो फेमिलियर नहीं है, मैं क्विकली आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू करवाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल proceed. Just give me a minute. Yes, I hope you all can see my screen. Yes. So, before we start, just quickly tell me what are the competencies of a good doctor. आपके ख्याल में आप डॉक्टर बन रहे हो, 4th ईयर, फाइनल ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर और हाउस जॉब. आपके ख्याल में एक अच्छे डॉक्टर में क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए? That he must be responsible, interactive, and he must be learned. He must have some knowledge. Yes, perfect. Thank you for adding. Do anyone else would like to add? He must What is- have a lot of knowledge, and he should know when to apply it. Okay, knowledgeable and application of that knowledge. Yes, excellent. Yes, what else? Ma'am, doctor should know how to work in a team, Yes. most importantly, क्योंकि Building. हॉस्पिटल में भी वर्क सब इकट्ठे. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. सो आपने पैरामेडिक्स के साथ कैसे काम करना है, आपने पेशेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, आपने नर्सिंग स्टाफ के से कैसे काम करवाना है. सो इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे टीम बिल्डर हो. ठीक है. सो यू नो जब आप अपना सीवी बना रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सीवी में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए वो आपकी सब कॉम्पिटेंसीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मैं आपका सीवी देखूं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, सो मुझे पता चलना चाहिए कि अलीना जो है वो अच्छी कम्युनिकेटर है, मुशेम जो है वो अच्छी टीम बिल्डर है, मोहम्मद आसिम जो है वो अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं. तो ये आप अपनी सीवी में कैसे शो कराओगे? कैसे बताओगे कि आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज हैं? Through Miss certain certificates. Yeah, Yes, through the work we have excellent. done. Yes, excellent. What else? Ma'am, we can mention in our CV if we have performed any leadership roles. Yes, excellent. So you know anything आपने अब जो हमारे साथ अभी हाउस जॉब या फाइनल ईयर में तो चले उनको भी फिलहाल हम छोड़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं. तो बेटा आप लोग अभी से जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज कर रहे हो,
आइदर वो आपकी कोई स्पोर्ट्स हैं, आइदर वो कोई डिबेट्स हैं, आइदर वो कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कोई ट्यूटोरियल्स कर रहे हो, कहीं पे आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है, कहीं पे आपको टीम बिल्डिंग के एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। सो ये जो सारी एक्टिविटीज आप कर रहे हो ना, ये अल्टीमेटली आपके सीवी में ऐड होंगी, और ये सब आपकी स्किल्स हैं जो आप सीख रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने इन सब के एविडेंसेस कलेक्ट करने। सो आई एम म्यूटिंग सदर। सदफ, आपका जब नॉइस कम हो जाए तो देन यू कैन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। ऑलराइट, सो आप ये जो सब चीजें कर रहे हो ना, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इनके एविडेंसेस कलेक्ट करो। इसके बाद हम रिसर्च पे भी आते हैं, मगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे लीडरशिप रोल प्ले किया है, सो जस्ट कलेक्ट द एविडेंसेस। कहीं फॉर एग्जांपल अभी आप एक वेबिनार अटेंड कर रहे हो, कलेक्ट द एविडेंसेस, और इन सबको आपने अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर आपके पास अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो डेवलप हुआ हो, ठीक है। सीवी भी हो और पोर्टफोलियो भी हो। सीवी इज द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। सो अभी प्लैब या इन चीज़ों में डॉक्टर अरीशा आपको इन चीज़ों पे हाईलाइट करेंगी कि आपने सीवी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, मगर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो और लोकल इसके लिए नेशनली भी कर रहे हो, पोर्टफोलियो की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है अब। सीवी जो है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, आप उसको देते हो, लेकिन अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एविडेंसेस कलेक्ट करोगे और उनके साथ अपना पोर्टफोलियो डेवलप करोगे और अपनी कॉम्पिटेंसीज शो करोगे कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, मैंने इन 5 सालों में ये चीज़ें सीखी हैं, तो डेफिनेटली आपको दूसरे कैंडिडेट पे प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। सो नॉलेजेबल होना तो बहुत अच्छी बात है, हम सब नॉलेज सीखते हैं, सीख पास होते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें जाते हैं, मगर नॉलेज के साथ साथ जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और उनके एविडेंसेस कलेक्ट करना और उनको अपने पोर्टफोलियो में हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो? सबसे आसान तो है कि आप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करके उन पे बना सकते हो। सबसे आसान जो है वो, अगर आपके जीमेल का अकाउंट है तो आप अपने उसमें ड्राइव में सिंपल गूगल साइट्स पे बना सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको एंड पे एक शो भी करूंगी एग्जांपल किसी एक पोर्टफोलियो की, और आप उसमें अपना सीवी भी ऐड करो, उसमें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट ऐड करो, एंड देन अपनी जितनी भी आपने रिसर्चेस की हैं उसको ऐड करो, अपनी कॉम्पिटेंसीज को ऐड करो, हाईलाइट करो, एंड देन आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको शोकेस कर सकते हो, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द रिसर्च पार्ट, आप कैसे अपनी गूगल पे प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है। सो जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल, पहले मैं आपको प्रोफाइल्स दिखाती हूँ। दूसरा पेज शेयर करती हूँ, एक्सक्यूज मी। नंबर नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, नियत भी प्लीज नहीं है, म्यूट योर नियत माइक। नहीं है मसला ये। अच्छा जी, तो आप में से कुछ लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, जिन लोगों ने नहीं बनाई, आप लोगों ने आज के वेबिनार के बाद सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, ठीक है। बिकॉज आप जो भी आप रिसर्च करोगे वो आपके नाम के साथ आपकी प्रोफाइल में शो होनी चाहिए, ठीक है। अभी मेरी बहुत बेसिक सी प्रोफाइल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरे नाम के साथ, सो आई एम अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट, मैंने अपना वो डाला हुआ है, ठीक है। मेरे एरियाज कौन कौन से हैं, असेसमेंट है, करिकुलम है, मेडिकल एडिटिंग है, एवेल्युएशन है, प्रोग्राम एवेल्युएशन, ठीक है। सो आप इसमें अपनी पिक्चर डाल सकते हो, अपनी डाल सकते हो, एफिलिएशन डाल सकते हो, फिर उसके बाद जो भी आपने रिसर्चेस की हैं उन सब रिसर्चेस को आप शो करा सकते हो, ठीक है। सो देखो फॉर एग्जांपल 2022 में क्या काम किया मैंने, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 2019 में क्या किया, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा साइटेड बाय। साइटेड बाय मींस के मेरे इस आर्टिकल को, मेरी इस स्टडी को कितने लोगों ने साइट किया है। सो मेरा एक आर्टिकल था 2020 में जिसको मुझे साइट किया 1676 आर्टिकल्स में, इतनी स्टडीज में मुझे साइट किया उन्होंने, ठीक है। सो फिर उसके बाद देखो एक और स्टडी थी 2022 में, उसमें 7 आर्टिकल 7 स्टडीज में लोगों ने इसको साइट किया। सो ये आपको साइटेशंस बता रहा होता है।
और यहाँ पे आपके पास ईयर आ रहा होता है और ये आपके टाइटल्स आ रहे होते हैं जो जो स्टडीज आपने की है। सो आपकी सारी रिसर्च आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाती है। सो जैसे ही फॉर एग्जांपल मेरा अभी कोई रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जैसे ही वो जर्नल मेरा आर्टिकल जो है वो ऑनलाइन करेंगे, पब्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि मेरी जो गूगल प्रोफाइल है वो इसको डिटेक्ट करके और खुद ब खुद मेरी प्रोफाइल में वो आर्टिकल शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखो, अगर राइट साइड पे आपको जो कॉलम नजर आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो आप साइटेड बाय मेरी कितनी साइटेशंस हैं, 1707 जो टोटल साइटेशंस हैं सब आर्टिकल्स की। और मेरा एच इंडेक्स क्या है 4, और मेरा I10 इंडेक्स क्या है 1। सो 4 मीन्स कि मेरे जो हैं 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको आप देखो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको 4 नंबर से ज्यादा लोगों ने साइट किया है। अब 5 पे आप देखो 3 है, जब इसको भी 5 से ज्यादा लोग साइट करेंगे तो मेरा एच इंडेक्स जो है वो 5 हो जाएगा। सो अब जब आप आहिस्ता आहिस्ता जाओगे या टीचिंग साइट पे जाओगे या फिर वैसे अपनी रिसर्च की साइट पे जाओगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि व्हाट इज योर एच इंडेक्स। सो दिस इज योर एच इंडेक्स, जो जिससे मुझे पता चलता है कि आपकी स्टडी को कितने लोग अपनी दूसरी स्टडीज में साइट कर रहे हैं, आप कितनी अच्छी स्टडी कर रहे हो, कितनी अच्छी रिसर्च कर रहे हो। सो दिस एच इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने कोशिश करनी Ma'am, है कि sorry अपना to disturb. There are some students in the waiting room, तो उन्हें kindly add कर दे. let me check Manahir, and I'm also making you co-host so that you can also. Alright, so I don't have the option of co-host, यहाँ पे सिर्फ host आ रहा है। चलो मैंने admit कर दिया। Excuse me. Alright, so I was telling you guys कि यहाँ पे देखो H index is very very important. So जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपनी रिसर्चेज ऐड करना शुरू करोगे, सो आप देखोगे कि आपकी साइटेशंस इंप्रूव होना शुरू होंगे, आपको दूसरे लोग साइट कर रहे होंगे, दूसरे लोग देख रहे होंगे और वो साइट कर रहे होंगे और आपका एच इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो अब मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई भी नाम बताते हो, मैं किसी की भी प्रोफाइल सर्च करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वापस माय प्रोफाइल में जाऊंगी और यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, आप इसको पब्लिक करना चाहो, अभी मैंने पब्लिक नहीं की हुई। ठीक है। सो जब आप पब्लिक मीन्स मैं पब्लिक करूंगी तो दैट मीन्स कि आप सब लोग गूगल स्कॉलर पे जाओगे, कायनात जावेद लिखोगे तो मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। ठीक है। भाई बहन की बात वीडियो है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहती हूँ, अब मैं बिकॉज आई एम अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट तो मैं अपनी फील्ड से सर्च करूंगी। सो फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर रेहान को सर्च करती हूँ। ठीक है। सो आपके पास रेहान नाम के लोग आ जाएंगे। ठीक है। आप जिनको भी आप जानते हो, फॉर एग्जांपल मैं रेहान अहमद खान को जानती हूँ, ही इज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट, ही इज वर्किंग इन रिफा। सो इनकी कितनी साइटेशंस है 1159। और अगर मैं इनको खोल के देखूं, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक की हुई है। तो आप देखो इनकी साइटेशंस 1159 है और इनका एच इंडेक्स जो है वो 15 है और इनका I10 इंडेक्स जो है वो 21 है। ठीक है। और ये इनका पूरी जो है ना वो आपको नजर आ रहा होगा कर्व, किस किस ईयर में इनको कितनी साइटेशंस मिली। ठीक है। सो सिमिलरली अगर आप किसी और की प्रोफाइल सर्च करो, फॉर एग्जांपल लॉरेंस शेरमैन की करते हैं हम। ठीक है। सो देखें अब, बिकॉज ये बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और इनका कितना है एच इंडेक्स 78 और इनकी साइटेशंस कितनी कितनी है 38,000 एंड अबव। सो दैट मीन्स कि इन्होंने कितना काम किया हुआ है अपनी फील्ड में, वो इससे शो करता है। ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहती हूँ कि मरियम की, महापारा की, मनाहिल की क्या रिसर्च है, ठीक है, उनका एच इंडेक्स क्या है, तो मैं आपकी प्रोफाइल सर्च करूंगी। ठीक है। इसी तरह मैं आपकी प्रोफाइल सर्च करूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितनी रिसर्च की हुई है,
आपकी स्टडी को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्टडी कितनी ऑथेंटिक थी, ठीक है। सो मुझे आपकी प्रोफाइल से पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ कि आप लोग क्या फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अपनी एग्जांपल देती हूँ कि हम जब बहुत अभी अर्ली उसमें स्टेजेस में थे, जब अभी रिसर्च की इतनी नो हाउ नहीं थी, आर्टिकल्स का पता नहीं था, तो हम क्या करते थे कि हमें किसी भी रिसर्च में फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा जी सर्जरी के आर्टिकल में आप ये कर दें, हम आपका नाम डाल देंगे। सो मैंने कह दिया ठीक है जी, बस मेरा नाम ऐड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। और सर्जरी के बाद जो है किसी ने कहा कि हम आपका नाम फिजियो के किसी आर्टिकल में डाल देंगे, आप उसका रिजल्ट एनालाइज कर दें, ठीक है। हमने डिवाइड करके कर लिया फ्रेंड्स ने। सो यू नो आपने ना अब सबसे पहले तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। मैंने क्या मिस्टेक की थी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिसाइड किया था। ऐसे ही सोचे समझे बगैर आपने कोई रिसर्च नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल नूरुलैन का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सर्जरी है, ठीक है। सो मैं आपकी प्रोफाइल देखूं तो मुझे आपकी प्रोफाइल में सर्जरी में आपकी ग्रोथ नजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं मिनाहिल की प्रोफाइल देखूं, फॉर एग्जाम्पल मिनाहिल का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है, तो मुझे आपकी प्रोफाइल में आपकी रिसर्च में कम्युनिकेशन स्किल नजर आनी चाहिए। एमन की नूरुलैन की जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल वो मेडिकल एजुकेशन है, मेरा मेडिकल एजुकेशन है, तो मेरी प्रोफाइल में आपको मेडिकल एजुकेशन के आर्टिकल नजर आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ आर्टिकल में नाम डालने के लिए कभी सर्जरी के आर्टिकल में नाम आ गया, कभी मेडिसिन में आ गया, कभी किसी में आ गया। जरूर ऐसा करें जहां आपको मौका मिलता है, लेकिन अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करो और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। सो कल आप किसी फील्ड में जाओ, फॉर एग्जांपल नेफ्रो में जाओ, न्यूरो में जाओ, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपकी प्रोफाइल में भी वो शो होना चाहिए, ठीक है। और दैट विल मेक यू अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जो आपको दूसरे कैंडिडेट्स पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी जिस पे, ठीक है। सो अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेडिकल एजुकेशन है, मैं जाके अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगी, मैं अपनी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल दिखाऊंगी, सो वो शो करेगी, मेरी सारी चीजें जो है वो अलाइन होंगी, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है कि जब आप अपनी रिसर्च करो तो सबसे पहले तो आप अपने हेड में बहुत बहुत क्लियर हो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिसर्च आप क्यों कर रहे हो। उस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी स्किल को और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अलाइन करने के लिए, और ताकि आपकी प्रोफाइल वो आपको शो करे, ठीक है। और देन आप अपनी प्रोफाइल बनाओ और उस प्रोफाइल को जो है वो आप विजिबल करो ताकि लोग भी देख सकें, ठीक है। Yes, Nurulan is asking, I want to go in internal medicine. It almost covers everything, so I can write on various specialty, right? Yes, definitely Nurulan. Internal medicine में आप जो भी कर सकते हो, इसमें आप किसी भी चीज पे काम कर सकते हो, मगर शुड बी रिलेटेड टू मेडिसिन, ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि जब अब आप स्टडी कर रहे हो ना, तो सिर्फ इस चीज पे मत जाओ कि एक सिंपल सा क्वेश्चनर उठाएंगे और हम डेटा कलेक्ट करेंगे और हमारा आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। अब रिसर्च एआई के बाद बहुत बहुत आसान है। डॉक्टर अरीशा आपको कुछ टूल्स बताएंगी जिससे आप ऑनलाइन या एआई से रिसर्च कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, प्लेजरिज्म खत्म कर सकते हो, उसको ह्यूमनाइज कर सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार इस पे भी करेंगे कि आप किस तरह एआई से आर्टिकल लिख सकते हो। अब तो बहुत ऐसे ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं कि राइट अ रिसर्च, राइट अ आर्टिकल इन 1 आवर यूजिंग एआई टूल्स, तो हम वो सब एआई टूल्स आपको बता सकते हैं। उसमें अभी डॉक्टर अरीशा भी आपसे डिस्कस करेंगी, मगर अम, आपने जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो, इतनी एफर्ट कर ही रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टडी करो, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सिंपल 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 सी बातें, ये सब चीजें तो हम कर रहे हैं, हम कर भी सकते हैं, ठीक है। ये आप करो, डेफिनेटली करो। आपको 5 आर्टिकल चाहिए, वो करो, उसमें उसमें मसला नहीं है। मगर द थिंग इज कि रिसेंट क्या हो रहा है, ठीक है। अब मेरे जिस आर्टिकल को 1700 साइटेशंस मिली, 1700 लोगों ने उसको अपने आर्टिकल अपनी स्टडी में साइट किया, वो कब हुआ था? 2020 में, कोविड के टाइम पे हुआ था, और वो कोविड पे ही स्टडी हुई थी, ठीक है। सो अब आजकल एआई आ रहा है, तो एआई पे स्टडी करो, नई चीजों पे रिसर्च करो। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना आपने क्वेश्चनर उठाया और उस पर स्टडी कर ली। अगर आप करना चाहते हो, टाइम है, वो भी करो, लेकिन
कोई ना कोई चीज वंस अ ईयर, वंस इन 6 मंथ्स ऐसी सोचो जो नई है, जो आजकल के टाइम की है, ताकि आपकी स्टडी को दूसरे लोग साइट भी करें ना अपने आर्टिकल्स में। अगर आप वही पुरानी स्टडीज करोगे तो कोई आपको साइट नहीं करेगा, आपका एच इंडेक्स इंप्रूव नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी वेरी माइंडफुल कि आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो। रीसेंट चीज़ों को ढूंढो, रीसेंट टॉपिक्स ढूंढो। अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, अब हम एआई की तरफ जा रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं। सो अब वही हम ट्रेडिशनल मेथड जो है उस पे कि इंसिजन कैसा देंगे, कैसे अपेंडिक्स करेंगे, उसको हमें छोड़ना होगा और हमें रोबोटिक सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक भी अब तो पुरानी हो गई है खैर, लेकिन आपको नई चीज़ों के बारे में सोचना है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट मिनाहिल, मेरा ख्याल है कि दिस मीटिंग विल गोइंग टू बी फिनिश इन 8 minutes. Yes, ma'am, we'll regenerate the link and we'll send it in the group. All right. All right. So Mahapara is asking, as a second year student, how we can do research. सो महापारा सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो कि आप अपना आपका कॉलेज कौन सा है? जस्ट अनम्यूट योर माइक और जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो महाबारा, अगर तो आपका कोई मेंटोरिंग ग्रुप है तो आप सब दोस्त मिलके, सब मेंटीज जो उस ग्रुप के हैं वो मिलके एक कोई भी आइडिया जनरेट करे, टास्क डिवाइड करो और फिर अपनी रिसर्च करो। अगर नहीं है तो अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ, उसमें टास्क डिवाइड करो। कोई एक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स लिख ले, कोई पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, ऑब्जेक्टिव्स लिख लो। ठीक है, एक रिजल्ट को एनालाइज कर ले, क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करके डाटा कलेक्ट कर ले, एक आपका टीम मेंबर रिजल्ट को एनालाइज कर ले, एक डिस्कशन लिख ले। मगर इन सब चीज़ों के लिए आपको रिसर्च आना ज़रूरी है ना। सो अगर आप अपने जैसे अभी हम कर रहे हैं तो मे बी आप एक रिक्वेस्ट पुट ऑन कर सकते हो, फीडबैक में लिखो कि आपने पहले रिसर्च सीखनी है। सो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप रिसर्च सीखो, करोगे कैसे, सिंपल एक बेसिक आर्टिकल कैसे लिखते हैं, बस ये आपको आना चाहिए। अगर आप ये सीख लो, मेथडोलॉजी सीख लो, तो देन आप टीम में डिवाइड करो टास्क और आप इजीली आर्टिकल राइट अप कर सकते हो। अब तो बेटा एआई का दौर है, आप लोगों के लिए तो मुश्किल बात है ही नहीं। पहले तो इतना मुश्किल होता था लिटरेचर सर्च करना, लाइब्रेरीज में जाना, पिछली स्टडीज देखना, लेकिन आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान है और यू कैन डेफिनेटली डू इट, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। यस, अतीक इज आस्किंग कि टॉपिक कैसे डिसाइड करें फॉर सेकेंड ईयर एमबीबीएस। अतीक, आप पहले तो आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है? बेसिक साइंसेज, अभी आप सेकेंड ईयर में हो, या क्लिनिकल साइंसेज है? कैसे रिसर्च करना चाहते हो, क्या सोचा आपने? फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट है कि आप देखना चाहते हो डायबिटीज के पेशेंट में कोई चीज देखना चाहते हो। अगर आपको अभी भी ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो कि इंटरनेशनल जर्नल्स की लिस्ट निकालो, गूगल पे जाओ और उसका जो रीसेंट इशू पब्लिश हुआ है ना, उसके 5 आर्टिकल देखो, 10 आर्टिकल देखो, जो भी उसकी इंडेक्स आ रही है, और उसमें देखो लोगों ने रिसेंटली अभी 2024 में क्या स्टडी की है। ठीक है, क्लिनिकल पे क्या काम हो रहा है, वो 4-5 टॉपिक अपने पास लिखो, एक अपना मैप बनाओ, क्लाउड बनाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग जिसे हम कहते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट मैप बनाओ और उसमें फिर डॉट्स कनेक्ट करो कि अच्छा ये रिसेंटली ये 5-6 स्टडीज 2024 में हो रही हैं, तो मैं इसमें से कौन सी चीज कर सकता हूँ। इंटरनेशनली ये काम हो रहा है, पाकिस्तान में क्या चीज नहीं हो रही, तो आप उसको पाकिस्तान में करो, उस पे लिटरेचर सर्च करो गूगल पे जाके। सो इस तरह से आप पहले ढूंढना शुरू करो। सो उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप मे बी हम ये भी करा सकते हैं कि हम पहले आपको सर्च करना सिखाएं कि आप रीसेंट स्टडीज को कैसे सर्च कर सकते हो और कैसे अपनी जो है वो बना सकते हो। अच्छा जी, सो जब तक हमारी मीटिंग खत्म नहीं होती, मैंने आपको दिखाना है कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट सेशन पे डॉक्टर ईशा के साथ स्टार्ट कर सको। तो आप अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो? सिंपल, अगर आपका जीमेल अकाउंट है आप उस पर साइन इन करोगे, गूगल पे जाओगे, गूगल स्कॉलर लिखो, गूगल स्कॉलर सर्च करोगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह का आपके पास पेज खुल गया। इस पेज पे भी मेरी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, इसलिए मैंने ये वाला ईमेल खोला है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सो इस तरह आपका खुल जाएगा। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे,
अपना नाम लिखो, अपनी एफिलिएशन लिखो। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आपकी वेरिफिकेशन क्या है, अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करो। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से आपको उससे रिलेटेड फिर ना सर्चेज और आर्टिकल्स और वो चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है अभी गेमिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, सो सॉरी, एंड देन आप नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट पे जाओगे तो ये आपकी जो ऑलरेडी आपके नाम से सर्चेज हुई हुई है ना, अब फॉर एग्जांपल मरियम ने या महापारा ने जो है वो कोई 6 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आप इस तरह अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आपने जो जो सर्चेस की हुई है वो ऑलरेडी आपको शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये भी की हुई है एडवांटेजेस, ये मेरा आर्टिकल है, दिस इज नॉट माई आर्टिकल। इम्प्रूविंग वर्कफोर्स इन हेल्थ सेक्टर, ये मेरा आर्टिकल है, और मैंने ये दोनों सेलेक्ट किए और मैं फिर इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाऊंगी, ठीक है, कि ये मेरी स्टडीज है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी है, अभी मैं पब्लिक नहीं करना चाह रही। मुझे ईमेल भी चाहिए कि मुझे रिव्यू करते रहें, अपडेट दें, ठीक है, और अप्लाई अपडेट ऑटोमेटिकली वो करना चाहते हैं तो वो करें। एंड देन ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। अब जो जो देखो मैंने स्टडीज की हुई थी, ये मैंने प्रोफाइल अपनी बनाई, अभी आपके सामने ही सिलेक्ट किए हैं। जिन जिन 18 आर्टिकल्स में मेरा नाम आ रहा था वो ना उसने मेरी प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली डाल दिए, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल जो है वो मोहम्मद आसिम ने 5 आर्टिकल लिखे हैं। जब आप अपनी ऐसे जाके प्रोफाइल बिल्ड करोगे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल में आपके नाम से जो आर्टिकल हैं वो आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि चलो ये कहती हूँ मैंने ये वाला आर्टिकल जो है ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैं इसको क्लिक करूंगी। गलती से अगर कोई मेरे मेरे ही सेम सिमिलर नाम का है कायनात जावेद से, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है, कि दिस इज नॉट माय आर्टिकल, तो वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मजे की बात एक और चीज क्विकली, अब मैंने ये आर्टिकल खोला है जैसे 1700 लोगों ने साइट की है, ठीक है। सो मैं देखना चाहती हूँ कि किस किस ने साइट किया है, साइटेड बाय जो जहाँ पे लिखा हुआ है मैं वहां पे जाऊंगी। अब आप देखो कि बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज में भी मेरा आर्टिकल साइट हुआ हुआ है। ये सब ऑथर, ये देखो, प्लॉस में, प्लॉस वन में, ठीक है, एमडीपीआई में, साइंस डायरेक्ट में, स्प्रेंगर में, यहाँ पे सब इन जर्नल्स में मेरा आर्टिकल साइट हुआ हुआ है। तो वो आपको सारी जो है ना वो डिटेल्स बता देगा कि आपका आर्टिकल कहाँ कहाँ, कब कब, किस ईयर में साइट हुआ था, ठीक है। सो अगर आप भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से सर्च करोगे, और ये चीज़ फिर मैं अपने सीवी में ऐड करूंगी। अच्छा, हम वापस आते हैं अगली मीटिंग में, ये लिंक खत्म होने वाला है तो मैं फिर क्विकली 5 मिनट्स में आपको बताऊंगी कि सीवी में आपने कैसे ऐड करना है फिर अपनी रिसर्च को, अपने एच इंडेक्स को हाईलाइट करना है, अपनी साइटेशंस को हाईलाइट करना है, उसमें आपने बताना है। यहाँ तक आपका किसी का कोई क्वेश्चन गूगल प्रोफाइल से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहो? यस ईना, बेटा क्विकली आस्क द क्वेश्चन बिकॉज हमारी मीटिंग है। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम, यस बेटा। Ma'am, I just wanted to ask that because I haven't yet determined my field of interest. So how am I supposed to start my research and like कौन से basis के ऊपर start करूँ, किधर से करूँ? ऑलराइट, आप कौन से ईयर में हो? I'm first year. ऑलराइट, सो अभी तक आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है? मैम अभी तक behavioral science and physio, but बाकी इतने कोई खास नहीं लग रहा है। ऑलराइट, सो व्हाई नॉट आप कोई डाटा कलेक्ट करते हो कि स्टूडेंट्स पेशेंट्स के साथ, क्यों, बिकॉज यू सेड बिहेवियरल साइंस ना, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सो आप देखना चाहते हो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये हमारी, यस यस मुझे, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। आपका फॉर एग्जांपल ये जीमेल है, ठीक है, आप जीमेल पे जाते हो, गूगल साइट पे क्लिक करोगे और आप सिंपल जा सकते हो sites.google पे, और यहाँ पे आप फ्रीली अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक वर्ड और पावर पॉइंट, सिंपल, जहाँ पे हम चीज़ें डालते हैं, एडिट करते हैं, तो सिंपली आप इसको यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी हैं, जैसे होते हैं ना टेम्पलेट्स आपके पास पावर पॉइंट पे, वर्ड पे, तो आप टेम्पलेट्स यूज़ कर लो।
अदरवाइज आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी बना सकते हो ब्लैंक साइट पे जाके। सो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हम इस पे सेशन भी कर सकते हैं अगर आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक इस पे आएगा। अदरवाइज आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो sites.google आप सेव कर लो अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप इसमें डाल सकते हो डिफरेंट चीजें। ठीक है, आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या थी, आप कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने डिबेट्स में किया, स्पोर्ट्स में किया, ठीक है, एनीथिंग जिसमें आप कर रहे हो। कोई अवेयरनेस कैंप्स वॉक्स की, आपने कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप विजिट के लिए जाते हो, आपने वो किए। इवन स्पोर्ट्स में भी आप टीम बिल्डिंग सीख रहे होते हो ना, लीडरशिप सीख रहे होते हो। सो आप डेफिनेटली उसमें भी अपनी कॉम्पिटेंसीज को हाईलाइट करो, उसके एविडेंसेस भी कलेक्ट करो। आपने किसी डिबेट्स में पार्ट लिया, फिर फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या चीजें सीखी, सेकेंड ईयर में क्या सीखी। सो इस तरह से करके आप अपने काम को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, आप किस तरह से इसमें डिफरेंट सब पेजेस बना सकते हो। ठीक है, अपना सब मेन पेज बनाओ, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाओ, अपने बारे में लिखो, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखो। अगर आपने किसी इंटरनेशनल एग्जाम में जाना है तो वो आपसे सबसे पहले आपकी पर्सनल स्टेटमेंट मांगते हैं। सो आप लोगों को अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने इसको बनाया है, तो आप, सॉरी माई इंटरनेट इज लिटिल स्लो। यस, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इस तरह से अपना बना सकते हो। क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने की, फर्स्ट ईयर में क्या क्या किया, सेकेंड ईयर में क्या किया। ठीक है, सो जो कोई भी आपने, जैसे अभी आप कोई वर्कशॉप अभी कर रहे हो, सेमिनार या वेबिनार अटेंड कर रहे हो, कोई भी वर्कशॉप आपने अटेंड की, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी की है ना, तो आप इस तरह से डिफरेंट टैब्स बना के और अपनी सब चीजों को हाईलाइट करो। ठीक है, यस, मुशेम ने सबसे पहले हैंड रेज किया था। यस मुशेम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि एज करंटली आई एम इन 4th ईयर MBBS, तो हर महीने हमारी क्लिनिकल रोटेशन चेंज हो जाती हैं। तो जब रोटेशन चेंज होती है और जो भी नई रोटेशन होती है, तो आई डेवलप अ वेरी प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, बट मेजरली आई वांट टू परस्यू मेडिसिन आगे जाके। तो इफ आई डू स्टडीज अपनी रोटेशंस के मतलब या रिसर्च पेपर्स या फिर एनी आर्टिकल दैट आई राइट अकॉर्डिंग टू माय करंट रोटेशन, लेकिन वो मेजरली मेडिसिन वाली तरफ हो, तो इज इट गोइंग टू हेल्प इन माय CV? Yes, definitely it's going to help in your CV because medicine से तो related है ना। अच्छा, एक और चीज़ कि बिकॉज अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें, अभी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज। उनको करो और उनको, लेकिन उनको भी हाईलाइट करना सीखो, अपनी चीज़ों को शोकेस करना सीखो कि हमने कैसे करना है। ठीक है, सो मे बी अभी आप जहाँ पे अभी आप आर्टिकल लिखना सीख रहे हो, रिसर्च करना सीख रहे हो, तो वहाँ पे जो भी आप फिलहाल जिस वार्ड में हो, जहाँ पे आपकी रोटेशन है, वहाँ पे डाटा इजीली कलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए फिजिबल है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो और उसको शोकेस डेफिनेटली करो। और अगर आपकी मेडिसिन से ही रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि वो आपके एलाइड में तो आ रही है ना, मेडिसिन एलाइड फील्ड स्पेशलिटीज में आ रही है, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प आउट करेंगी। यस, Nurulan has raised the hand. जी Nurulan. Ma'am, basically, I have 2 or 3 questions. First of all, ये है कि as a student, I am a third year medical student, and as a student, what type of research या what is very appropriate for me? Like I can do meta-analysis and literature editors, and I personally myself discourage cross sections because they require IRB approval and which takes a lot of time. So the first question is this: that what type of research should I do in during my studies, like final year tak? Or the second question is ke if I have the second question is if I have access to patient's data, like for example, if I'm working, अगर कोई मेरा HO friend हो derma ward में, so if I have access to their data, like अगर कोई patient is coming with fungal and bacterial infection, like thousands of patients, तो मैं उस पे कौन से type of research कर सकती हूँ cross section के अलावा?
ऑलराइट, थैंक यू नूरुलैन। सो बेसिकली आज तो हम सीवी राइटिंग और आपकी शोकेसिंग पे बात करें कि आपने कैसे करना है अपने काम को। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं आप आंसर तो करती हूँ, लेकिन हमें मुझे लगता है कि इसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट मैं नाहिल या आपकी टीम कि हम स्टार्ट वहाँ से करें कि आर्टिकल राइटअप कैसे करना है, उसकी स्टडी टाइप्स क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव की क्या टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव की क्या टाइप्स होती हैं। नूरुलैन का क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है कि अगर डर्मा वार्ड में काम करें तो क्रॉस सेक्शनल के अलावा क्या कर सकते हैं, आईआरबी के अलावा कम मुश्किल जो स्टेप है उसके अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं। तो ये बहुत सीखने वाली चीजें हैं और आई थिंक कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा नूरुलैन, जस्ट टू क्विकली आंसर योर क्वेश्चन, आपका जो नंबर 1 क्वेश्चन था आईआरबी वाला कि आप एडिटोरियल लेटर टू एडिटोरियल करना चाह रहे हो या मेटा एनालिसिस करना चाह रहे हो, बेटा वो ज़रूर करो, मगर उसमें आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके कोई रिसर्च नहीं कर रहे। वहाँ पे सिंपल आप एक लेटर टू एडिटोरियल लिख रहे हो जो कि आपकी रिसर्च में काउंट नहीं हो रहा। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पीएमडीसी में या प्रमोशन के लिए चाहिए ना, तो वो आपके लेटर टू एडिटोरियल, आपके कम्युनिकेशन जो है, आपकी शॉर्ट कम्युनिकेशन जहाँ जो आप लिखते हो सिर्फ अपना व्यू बताते हो एक एडिटर को, ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होती फॉर प्रमोशन। आपकी प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए यस डेफिनेटली होती हैं, लेकिन आप उसमें सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, आप कोई स्टडी नहीं कर रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आईआरबी ठीक है, मुश्किल है, लेकिन आप एक साइनॉप्सिस लिखते हो, उस आपकी यूनिवर्सिटी के उसमें जमा कराते हो, रिसर्च कमेटी को देते हो, वो आपको आईआरबी दे देते हैं। जब कोई अगर मेजर एथिकल इशू ना हो तो आपको आईआरबी तंग नहीं करता, आपको फौरन आईआरबी मिल जाता है। तो आपको साइनॉप्सिस भी लिखना आना चाहिए कि जिसमें आप ये बता सको अपने रिसर्च कमेटी को कि आपकी स्टडी किसी को हार्म नहीं करेगी और इसके अंदर कोई भी ऐसा एथिकल इशू नहीं है। तो आपको आईआरबी प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप पहले मेथोडोलॉजी सीखो, क्वांटिटेटिव क्या होती है, क्वालिटेटिव क्या स्टडी होती हैं, क्रॉस सेक्शनल नहीं करना चाह रहे तो और कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं, मिक्स मेथड क्या होती है, अगर वो भी नहीं करना चाह रहे तो क्वालिटेटिव कैसे कर सकते हो। जैसे ईना का क्वेश्चन था बीएस से रिलेटेड, सो बीएस में आप क्वालिटेटिव कर सकते हो, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लो, इंटरव्यूज कर लो और उन इंटरव्यूज को ट्रांसक्राइब करके उनकी कोडिंग कर लो, उनकी थीम्स निकाल लो और उस तरह से बता दो, ठीक है। सो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब सब आप लोग इतने अगर इंथुजियास्टिक हो ना और सीखने की आपके अंदर है, तो अभी ही कोई अच्छी चीज करना सीखो, सिंपल क्रॉस सेक्शनल ना करो। मैं चाहूंगी कि आप मिक्स मेथड करो, आप क्वालिटेटिव रिसर्चेस करो जहाँ पे आप एक्सप्लोर करो कि असल में इशू है क्या, ताकि अगर जो आप इतनी एफर्ट कर रहे हो ना उसमें 10% 15% और एफर्ट डाल के आप उस स्टडी को अच्छे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करो। जो आपकी सिंपल सिंपल रिसर्चेज होती है ना, इंटरनेशनल आर्टिकल्स इसको पब्लिश नहीं करते। इसीलिए मैं कह रही हूँ रीसेंट चीज़ों पे काम करो, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, गैप्स आइडेंटिफाई करो, उन चीज़ों को हाईलाइट करो एंड देन इंटरनेशनल आर्टिकल्स जो है ना वो ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे बर्निंग हॉट टॉपिक्स को अपने न्यू एडिशंस में छापते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप लोकल जर्नल में ही छाप सकोगे, इंटरनेशनल जर्नल्स आपके आर्टिकल नहीं लेंगे। यस, आमना इनायत हैज रेज्ड द हैंड। मैम आई वांट टू आस्क कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम किस तरह रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें कि मतलब आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू हैव माय रिसर्च पब्लिश, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे देखें और उनको मतलब आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ लाइक इस पे कोई अगर आप स्मार्ट टिप्स दे सकें। ऑलराइट आमना, आपका कॉलेज कौन सा है, इंस्टीट्यूट? मैम आई एम फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची। ऑलराइट, सो आमना, एक टिप जो मैं आपको दूंगी ना कि आप अपना ऐसा सर्कल डेवलप करो जो आप मिलके रिसर्च कर सको, ठीक है। सो अगर आप 5-6 लोग ऐसे हो जो वाकई ही सीरियसली रिसर्च में इंटरेस्टेड हो और जो कुछ करना चाहते हो, तो आप लोग अपना एक ग्रुप बनाओ। अगर आपके यहाँ मेंटोरिंग प्रोग्राम है तो बहुत कन्वीनियंट है आपके लिए कि आपका मेंटोर आपको हेल्प आउट करता है एवरी स्टेज पे। अगर नहीं है तो फाइंड योर मेंटोर और उनसे हेल्प लो। आप 5-6 लोग उनके पास जाओ, उनसे पूछो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की मेंटोर हूँ, ठीक है।
ऐसे ऑफिशियल मेंटोर नहीं, वैसे ही वो अपनी रिसर्च के लिए मेरे पास आते थे। सो मैंने उन बच्चों को पहले कहा कि बेटा आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, ठीक है। मैंने उन्हें बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन वो बेसिक साइंसेज की तरफ नहीं गए, हालांकि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे। उन्होंने चूज किया मेडिसिन, ठीक है। उन सबको डायबिटीज पे काम करना था। उन्होंने खुद से इंटरनेशनल जर्नल एक्सप्लोर किए, डायबिटीज से रिलेटेड डाटा निकाला, क्या क्या हो रहा है रिसेंटली। फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में डायबिटीज में क्या नहीं हो रहा, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को डायबिटिक फुट का कितना पता है, उसकी नो हाउ, उसका नॉलेज कितना है। और उन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू की। फिर उन्हें जब भी कोई प्रॉब्लम आता था, उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उनको हेल्प आउट कर देती थी कि अच्छा अब ये स्टेप करो, अब ऐसे डाटा कलेक्ट करना है, अब ऐसे एनालाइज करना है, अब डिस्कशन में आप ऐसे करोगे, रेफरेंसेस कैसे डालने हैं। सो एक आपको अपना सर्कल, अपना ग्रुप डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी। जब आप 5-6 लोग ऐसे टीम बन जाएंगी तो डेफिनेटली आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बन जाओगे ना, तो आप सब एक दूसरे को पुश करोगे काम के लिए। सो पहले, सबसे पहले तो अपना एक सर्कल ऐसा ढूंढो कि आप कैसे काम करोगे। यस, मुशेम हैज रेज्ड द हैंड। Okay, thank you, ma'am. यू वेलकम। Ma'am, I wanted to ask, since first year I am in a lot of extracurricular activities, but my particular interest is in media and graphic designing. So I have a lot of experience in those types of things. So is it appropriate to mention those type of stuff in my portfolio? या फिर अभी से onward I should start doing something that is more Shame, oriented towards my definitely. growth? Do mention it, do highlight it, do showcase it, because um, जैसे हम ट्रेडिशनल पढ़ते आए हैं ना, ट्रेडिशनल सुनते आए हैं, अब आपका सिनेरियो आपकी टाइम पे बहुत सारा चेंज हो गया है, बहुत शिफ्ट आ गया है, ठीक है। 180 डिग्रीज शिफ्ट आ गया। सो अब हम, फॉर एग्जांपल आई एम डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन में इंटरव्यू कीजिए, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरे पास अगर मुशेम आई है, मेरे पास दानिश आया है, मेरे पास आफ्ताब आया है, सो उसको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कितनी है, वो कल को कोई कॉन्फ्रेंस करवा सकता है, नहीं करवा सकता, कोई वेबिनार करा सकता है, नहीं करा सकता। सो डेफिनेटली अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो ये उसका आपका प्लस पॉइंट है, ये ऐड होंगी आपके उसमें, ठीक है। सो इसको जरूर आप हाईलाइट करो। अच्छा जी, मैं आपको क्विकली बता दूं, देन आई हैंड ओवर टू डॉक्टर अरीशा। सो आप अपने सीवी में, बाकी बातें तो डॉक्टर अरीशा आपके साथ करेंगी। मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम सीवी बनाते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हम जो है वो अपनी सिंपल वो लिख देते हैं ना, नाम लिखते हैं, अपना ईमेल लिखते हैं, अपना फोन नंबर लिखते हैं, फिर अपनी डिग्रीज लिखते हैं, और क्या करते हैं हम डिग्रीज के आगे ईयर्स लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम। सो अब आपने क्या करना है, जब आपने कहीं इंटरनेशनली अप्लाई करना है, तो आपने उसको कॉलम्स में बनाना है। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं सीवी के लिए। सो आप लोग उसको सर्च करो, आप सब लोग माशाल्लाह से इतने टेक सेवी हो, आप सब निकाल सकते हो। उन टेम्पलेट्स को निकालो, कॉलम्स बने हुए हैं, लेफ्ट साइड पे कॉलम बना हुआ है, फिर एक पूरी स्पेस खाली है। सबसे पहले अपनी पिक्चर लगाओ। कुछ लोग कहते हैं पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पिक्चर लगानी चाहिए। सो इट्स अप टू यू, आप जैसे कंफर्टेबल हो। पिक्चर के साथ आपका नाम हो, आपका ईमेल एड्रेस हो, आपका फ़ोन नंबर हो कि आपसे कांटेक्ट कैसे करना है। और उसके बाद नीचे आपने एक पैराग्राफ में अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट आप गूगल करोगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप इजीली वहां से देख के लिख सकते हो। पर्सनल स्टेटमेंट लिखो, फिर उसके बाद जो लेफ्ट कॉलम होगा ना, उसमें लिखो कि आपकी स्किल्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईना इज अ गुड कम्युनिकेटर, आसिम इज अ गुड टीम बिल्डर, आयशा इज अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अपनी स्किल्स को हाईलाइट करो, 5 6 7 जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको साइड पे लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे लिखो योर रिसर्च इंटरेस्ट, ठीक है। और उसकी हेडिंग के नीचे लिखो, बताओ कि आपने इतनी स्टडीज की हैं, इसमें से इतनी स्टडीज जो हैं वो आपके इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हैं, इतनी स्टडीज जो हैं वो इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, मेरे अगर 30 रिसर्च आर्टिकल्स हैं मेरे, ठीक है, तो मैं बताऊंगी जी कि मैंने 30 मेरी रिसर्चेस हैं, जिसकी मेरी इतनी साइटेशंस हैं, मेरा इतना एच इंडेक्स है। इसमें से मेरी इतनी जो है 10 फॉर एग्जांपल जो है वो गेमिफिकेशन से रिलेटेड हैं, 5 मेरी स्टडीज जो हैं वो असेसमेंट से रिलेटेड हैं,
10 मेरी स्टडीज जो है वो प्रोग्राम एवेल्युएशन से रिलेटेड है। तो फिर जो बंदा मुझे हायर कर रहा होगा या बंदा जो मुझे रख रहा होगा वो सोचेगा कि अच्छा इसने अगर इतनी रिसर्च गेमिफिकेशन पे की है तो हम इससे डायरेक्टर ऑफ गेमिफिकेशन रखते हैं, अगर इसने इतनी स्टडी असेसमेंट पे की है तो हम इसे फलां फलां रखते हैं। ठीक है, यू नो, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मुझे आपका सीवी देखते ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे को मैंने कहाँ रखना है। ठीक है, और ये बच्चा मेरे काम का है कि नहीं काम का, इस बच्चे को मैंने कहाँ पे इंटरनल मेडिसिन में मैंने रोटेशन में रखना है, मैंने इसको सर्जरी में रखना है, मैंने इसको न्यूरो में भेजना है। तो आपकी रिसर्चेज वो होंगी 5 6 7 जितनी भी आप करते हो, उसमें आपने अपनी साइटेशन भी बताई होंगी, आपने अपना एरिया ऑफ रिसर्च भी बता दिया, ये भी बता दिया कि आप उसी पे काम कर रहे हो। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द प्रेफरेंस ओवर द अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, एक चीज तो ये, अब आपने सिंपल डिग्रीज के साथ डेट्स नहीं मेंशन करनी, आपने अपनी स्किल्स को शोकेस करना है। उसके बाद आप डेफिनेटली जरूर मेंशन करो इस टाइम पे आपने ये किया, इस टाइम पे ये किया, लेकिन उससे भी पहले पर्सनल स्टेटमेंट के बाद आपने बताना है कि आपका फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंटरनल मेडिसिन, 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जो है आपका सर्जरी। ठीक है, सो आपने जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस किया है, एज अ एमओ जॉब की है, एज अ हाउस ऑफिसर की है, तो उस चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करो। ये कोई नहीं ढूंढेगा आपकी सीवी में कि अच्छा 2020 में जो है वो इस बच्चे ने एमबीबीएस किया, 2015 में इसने एफएससी की। ये नहीं है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आमना ने इंटरनल मेडिसिन में जाना है तो उसने इंटरनल मेडिसिन में 3 रिसर्चेस की हुई हैं, उसका इंटरनल मेडिसिन में 6 महीने का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो अब जब मैं आपका सीवी देखूं तो मुझे आपका सीवी देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन वो मिलना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे फर्स्ट इंप्रेशन ये मिले कि 2020 में ये किया, 2015 में एफएससी की, 2013 में मैट्रिक किया, दैट्स इट। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन का मैंने बता दिया, सेकेंडली फिर जो भी आपने रिसर्चेस किए हैं उसको एंड पे जब हम मेंशन करते हैं ना पब्लिकेशन की हेडिंग के अंदर, तो वो डेफिनेटली करो उस तरह से। लेकिन ये 4 5 6 पॉइंट्स याद रखो जो मैंने आपको बताए। So that's all from my side regarding the portfolio, regarding the Google profile, and regarding your CV. So if you have any questions, you can raise your hand or you can mention in the chat box. So that's all from my side. I'll hand over to Dr. Arisha so that वो quickly अपना component start कर सके. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am, for such a good session. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am, for such an insightful session. I am Dr. Isha Arif, and now I'll give you guys a little insight of PLAB exam. So let me just quickly share with you my screen. I have made a little presentation for you guys. Ma'am, do you want me to share the presentation? Yeah, okay, Manahil. Or let me just share. Can you guys see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Yeah, okay. So let's just talk about what is PLAB exam basically. Hold on. Yeah, okay. So these are the components that I'll be discussing with you today. So आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्लैब करना है? कोई आइडिया किसी को? अभी तक किसी ने सोचा हुआ है? You guys can just raise your Yes, hand. ma'am. Yes, Yeah, ma'am. Okay, that's interesting. फिर आप लोगों को समझ भी आएगी और enjoy भी करोगे क्योंकि it's really helpful for you guys. Just listen very carefully. Okay. So आपको ये पता है कि 2024 onwards it's gonna be MLA, not PLAB anymore. They're just changing the name and a little bit of the blueprints as well. Do you guys know? Yes, ma'am. I just recently got to know. Yeah, okay. So let's just quickly talk about PLAB. So for 2024 onwards, they're just going to name it as MLA, and the blueprints which are available on GMC website.
Let me just show you. Oh yeah, okay, I will show you at the end how to just find the blueprint of it. Blueprint basically क्या है? Blueprint ये है कि आपने कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है. GMC ने अपनी वेबसाइट पे वो सब कुछ दिया हुआ है. Let me just introduce you what GMC is. GMC is General Medical Council. Basically UK की है, जैसे हमारे यहाँ PMDC होती है, उनकी इसी तरह GMC है. तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे सारा बताया हुआ है कि प्लैब के लिए कौन कौन से आपको कंपोनेंट्स में से कौन कौन से MCQs आएंगे, क्या क्या होगा, कौन सा सिलेबस आपने पढ़ना है, कैसे आपने पढ़ना है, वो सब कुछ ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया है वेबसाइट पे. उसके बाद प्लैब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अप्लाई कब करना है, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए. जो मुझे लगता है कि मेरे से एक गलती हुई है, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको करेक्ट करो और उसको ना करो. वो ये है कि आपको डिसाइड करना चाहिए पहले ही कि आपने क्या करना है. ये नहीं कि आप फाइनल ईयर में जाके और हाउस जॉब में जाके डिसाइड करो कि अच्छा ठीक है आपने प्लैब करना है. उसके बाद फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो आजकल जो सीट्स आ रही हैं प्लैब की जो बुक होती हैं उसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर का गैप आ रहा है. अगर आप 2023 में बुक कर रहे हो तो आपको 2024 नवंबर में अगर आप बुक कर रहे हो तो आपको 2024 दिसंबर तक की सीट मिलती है. मतलब 1 ईयर का गैप आपका आता है. तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू जस्ट बुक before just right after you finish your final year. So what's the ideal time to give your OET? Okay, so before we move forward, I'd like to tell you guys कि जो प्लैब है उसके लिए कुछ prerequisites हैं. वो क्या क्या है? बेसिकली सबसे पहले आपने एक OET एग्जाम है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट इसको कहते हैं बेसिकली. ये या स्लैश IELTS दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट यू गाइस टू जस्ट गो फॉर OET. ये पास हो जाता है आसानी से. तो आई थिंक आप लोगों को भी ये करना चाहिए. इसमें है क्या कि जब आप आई विल सजेस्ट यू गाइस टू जस्ट डू इट एट योर व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर. तो आप इसको कर लो OET को बुक करो और OET कर लो. OET जब पास हो जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल हो GMC अकाउंट बनाने के लिए. GMC अकाउंट के लिए आपको क्या क्या कुछ चीज़ें चाहिए होंगी. GMC अकाउंट के लिए आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, एक वैलिड पासपोर्ट जो कि एक्सपायरी की डेट जिसकी कोई 2 साल. ये नहीं कि अगर आप आज उसकी पासपोर्ट डेट डाल रहे हो नंबर तो वो अगले साल एक्सपायर हो जाए, तो वो फिर आपको इशू होगा. वो दोबारा आपको GMC को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके डेट्स रिन्यूअल करानी पड़ेंगी, उसका नंबर सही कराना पड़ेगा. सो इसलिए आप पहले ही रिन्यू करा के, तो जो रिन्यूअल वाला आपका पासपोर्ट है वो ही उसका ही नंबर आप एंटर करो ऑन GMC अकाउंट. उसके बाद जो आपको चाहिए वो है स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ योर मेडिकल स्कूल. अच्छा, अब ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि प्लैब हम दे सकते हैं 3rd ईयर में 4th ईयर में. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लैब आप 3rd ईयर 4th ईयर में नहीं दे सकते. प्लैब आप फाइनल ईयर के बाद ही दे सकते हैं, जब आपके पास स्टार्ट और एंड डेट है मेडिकल स्कूल की तब. MLE आप दे सकते हैं, MLE 3rd ईयर में बहुत से लोग देते भी हैं, लेकिन प्लैब के लिए ऐसा नहीं है. प्लैब आप नहीं दे सकते जब तक आपका पूरा खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि आपको एंड डेट और स्टार्ट डेट चाहिए आपका GMC अकाउंट बनाने के लिए. उसके बाद अच्छा, अब आगे कुछ स्ट्रेटजीज हैं. आपने क्या किया, आपने OET पास किया और उसके बाद आपने GMC अकाउंट बनाया. GMC अकाउंट बना के आपने क्या करना होता है कि जब आपका OET का रिजल्ट होता है ना, उसको आपने उस पर अपलोड करना है GMC अकाउंट पे. जब आप लोग वो अपलोड कर दोगे रिजल्ट, तो GMC उसको वेरीफाई करती है कि ठीक है ये रिजल्ट ओके है. GMC को एक्सेस आप लोग दे दोगे. उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाएगा, नाउ यू आर एलिजिबल टू बुक अ सीट ऑफ प्लैब 1 एग्जाम. ओके, प्लैब 1 की सीट्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं, लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट यू गाइस टू जस्ट लुक फॉर अ कैंसल सीट एज वेल. ये ऐसे इंतजार मत करो कि अगर आपका लेट्स सपोज अगस्त में हो गया है OET पास, तो आप नवंबर में सीट आनी है, दिसंबर में सीट आनी है, तो आप उस ड्यूरेशन में डू चेक आउट फॉर कैंसल सीट्स एज वेल. कैंसल सीट्स के लिए कैसे चेक करना है वो आप GM से जब आपका अकाउंट बनना होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. वो आप उसको खोलोगे, वहाँ पे अगर कैंसल सीट शो हो रही है तो जस्ट बुक इट राइट अवे. बट अगर आप दिसंबर में बुक करोगे तो वही बात कि अगर आपने लेट्स सपोज अब जो मार्च में जो लोगों ने बुक किया है ना, अभी जो रिसेंट सीट्स आएंगी मार्च में जो बुक करेंगे उनको अगले साल फेब का मिलेगा प्लैब 1 एग्जाम. सो इट्स गना बी क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. सो देयर आर सम स्ट्रेटजीज जो आप लोग उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो. जैसे मैंने बुक किया था तो मुझे भी 1 साल बाद का प्लैब 1 की सीट मिली थी. तो मैंने उस टाइम में क्या किया, मैंने जॉब की, मैंने कोर्सेज किए डिफरेंट. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू डू द सेम एज वेल. क्या करना है आपने, सबसे पहले तो एक जॉब लेना बहुत ज़रूरी है. और क्योंकि GMC माइंड करता है अगर आपके करियर में कोई गैप आ जाए, जैसे अगर आपने हाउस जॉब की है और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मैंने घर रहना है, मैंने कुछ नहीं करना, अभी जॉब नहीं करनी, तो वो इट्स नॉट गोना हेल्प यू एनी वे. तो आपने क्या करना है, राइट अवे जस्ट लुक फॉर जॉब वाइल यू आर डूइंग योर हाउस जॉब. उसके बाद राइट आफ्टर योर हाउस जॉब जस्ट गेट योर सेल्फ अ जॉब. और जॉब भी ऐसी करनी है जिसमें आप पढ़ सको.
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि 36 आवर्स के पहले कहते हैं हमने क्लिनिकल जॉब करनी है, 36 आवर्स के ड्यूटी लॉन्ग आवर्स होते हैं, उस पर वो पढ़ा नहीं जाता, और फिर एट द एंड अगर आपको 1 साल बाद का प्लैब मिल रहा है और आप वो बाद में जाके 1 साल बाद फेल कर दो सिर्फ इसलिए कि आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तो इट्स नॉट अ वाइज आइडिया, आई विल से. So just do a job where you can study as well. Also, you can just apply for a demonstrator post because the teaching experience does count in NHS and in GMC. So another thing that you guys can do is to get yourself enrolled in specific courses like जैसे मैंने एक मेंशन भी की हुई है, अल सादिक इंटरनेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जो वेरियस अदर कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रही है. So what you guys can do is just get enrolled in any of the courses. What I did from there is certification in medical research and medical writing. It was a 3 months course. So you guys can do that as well. It will also gonna be helpful in building your portfolio later on. और इसके अलावा आपका टाइम भी अच्छा यूटिलाइज हो जाता है, आपको रिसर्च का पता लग जाता है और आप अपनी रिसर्च फिर कर भी सकते हो उसके बाद. Also, there is another platform which I have mentioned here is Coursera. Coursera पे different multiple courses available हैं for free. You guys can check that out as well, this website, and can select a course of your interest and can do that. Are you guys following me till now? Yes. Yes, Yeah. ma'am. Okay, so here are some of the resources which are very beneficial and which are the key to pass a PLAB 1 exam. So first of all, there is obviously GMC website. Nothing is more accurate than GMC website. So just stalk the GMC website. वहाँ पे हर चीज़ उन्होंने दी हुई है, PLAB 1 guide, PLAB 2, everything is available over there. So you guys can check that out as well. उसके बाद प्लैब कीज पे बहुत एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन में. मेड रिविजन्स है, मेड रिविजन्स काफ़ी लेंथी है, तो मैंने नहीं की थी वैसे. मेड रिविजन्स बहुत लेंथी है, लेकिन इट्स वन ऑफ द ऑप्शंस यू गाइस कैन गो अगर आपके पास टाइम है. बेसिकली प्रिपरेशन के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कितना टाइम चाहिए होता है. 3 months आर मोर देन इनफ इफ़ यू आर वेरी 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 कीन, तो 3 months इनफ है प्रिपरेशन के लिए. लेकिन अगर आपने मेड रिविजन्स करनी है तो उसके लिए आई गेस 5 months तो चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसका मटेरियल है और पढ़ने में काफ़ी टाइम भी लगता है. ऑल्सो प्लेबेबल इज अनदर ऑप्शन, और मैंने इसको बहुत कैप्स लॉक में लिखा है, वो इसलिए कि ये तो एक की है ना, ये तो आपने करना ही करना है इसको. तो बाकी सब प्लैब कीज जो है बेसिकली वो एक थ्योरी है, और जो प्लेबेबल है बेसिकली ये MCQs बेस्ड आपका पूरा एक प्लेटफॉर्म है. बेसिकली आपने इसको परचेज करना होता है. आई थिंक 80 pounds तक मिल जाता है, इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाती है. तो ये तो आपने करना ही करना है. इसमें क्या है, इसमें टॉप जो आपने प्लैब की से टॉपिक पढ़े होंगे प्लेबेबल में, उसके MCQs दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स के. तो आपने उन्हीं टॉपिक्स को पहले प्लैब की से पढ़ना है और फिर उनके जो MCQs है वो सॉल्व करने हैं प्लेबेबल से. और एट द एंड ऑफ दैट जब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो आपको कुछ मॉक एग्जाम्स हैं प्लेबेबल में, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं. 19 मॉक एग्जाम्स हैं टिल नाउ, तो अगर आप वो अटेम्प्ट कर लेते हो तो इट्स मोर देन इनफ. और जो आपका मॉक स्कोर होता है प्लेबेबल का, इट्स हाईली 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 एक्यूरेट. मतलब जितने आपके मॉक एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं ना, आपके प्लैब 1 में भी ऑलमोस्ट उतने ही नंबर आ रहे होते हैं. सो या दैट्स अनदर ऑप्शन. द लास्ट वन इज रोड टू यूके. बेसिकली इट्स अ फ्री वेबसाइट, यू गाइस कैन चेक दैट आउट, रोड टू यूके. और मैंने अपनी जर्नी में रोड टू यूके को बहुत फॉलो किया. ये हर चीज़ बताते हैं. और बेसिकली ये भी 2 डॉक्टर्स हैं जो NHS में काम कर रहे हैं, और इनको ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा तो किसी को नहीं पता होगा. और इट्स अ वेरी 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 गुड प्लेटफॉर्म. ये आपको प्लैब 1 से लेके आपने CV कैसे बिल्ड करनी है NHS में देने के लिए, हर चीज़ ये आपको बताते हैं, एंड इट्स टोटली फ्री. So do check that out and do stalk this website all over the social media platforms. YouTube पे इनकी वीडियोस हैं बहुत अच्छी. You guys can check that their Twitter page as well. It's really good. Okay, so what's the pattern? So there will be 180 MCQs in the PLAB 1 exam, which you all have to attempt. और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको गलत हो गया उसकी नेगेटिव मार्किंग है, नहीं. You guys have to attempt all the questions. And the cutoff is between 113 to 116, which means this is basically the passing percentage, passing marks actually. अगर तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसका फिर कट ऑफ कम हो जाएगा, 113 हो जाएगा. लेकिन अगर एग्जाम रिलेटिवली ईजी है तो फिर आपका वो 116 117 तक भी जाता है. पासिंग मार्क्स इतने भी होते हैं आपके. Also, there is one more thing that I like to highlight.
वो ये है कि पहले जब मैंने बुक किया था एग्जाम तो मुझे लगता था कि एक मिसकंसेप्शन है कि फेब और नवंबर का इजी आता है या कुछ इस तरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिसकंसेप्शन ही है, जो लोग कहते हैं कि फेब का बहुत इजी आता है, नवंबर का बहुत मुश्किल आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीएमसी इज वेरी फेयर, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो एक तो मुश्किल देते हैं और दूसरा बिल्कुल आसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो जस्ट गो फॉर इट, जो भी आपको सीट मिलती है जस्ट बुक दैट राइट अवे, डोंट वेस्ट योर टाइम कि मुझे फेब की सीट नहीं चाहिए, मुझे अगस्त का मुझे किसी ने बता दिया तो वो बहुत उसका पेपर आसान होता है तो मैं अगस्त का बुक करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल जस्ट मिसकंसेप्शंस, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आपको जो भी सीट मिलती है जस्ट बुक दैट एंड जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम एंड यू विल एस इट इंशाल्लाह। Okay, so now let's move on to the importance of research in while doing your PLAB exam. So I want to ask you guys कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने नाम को गूगल किया है कभी किसी ने गूगल अपना नाम? Anyone? यस। Okay. क्या क्या देखा फिर आपने, क्या मिलता है वहां पे? मेरे तो नाम पे कुछ भी नहीं आता बिकॉज आई हैव अ वेरी यूनिक नेम, तो सिर्फ मतलब ही आ जाता है। ओके। सो बेसिकली मैंने लिखा है यहाँ पे क्यों है गूगल योर नेम, वो इसलिए कि जब भी आप अपना नाम गूगल करते हैं तो जितनी भी आपकी रिसर्चेज हैं, जितने भी आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं, वो सब शो हो जाते हैं गूगल पे। सो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी कि आपको एक आपका पूरा परसेप्शन बन जाता है और पूरा एक आइडियोलॉजी है, वो सब कुछ तो ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो है, लेकिन जब आप अपना नाम गूगल करते हो और आपके सामने वो सारे आर्टिकल्स जो आपके पब्लिश हुए हुए होते हैं वो आ जाते हैं तो इट फील्स रियली गुड। और जब आप लोग ये करोगे और तो आप देखोगे कि इट डज फील अमेजिंग एज वेल। सो बिलो दैट इज द स्क्रीनशॉट व्हिच आई टुक फ्रॉम द वेबसाइट। इसमें you guys can see that research is on the 6th number। बेसिकली ये है क्या, ये एक CV टेम्पलेट है जो प्लैब एग्जाम करने के कंप्लीट प्लैब 1 प्लैब 2 करने के बाद जो आपने जॉब्स अप्लाई करनी होती है NHS में, तो जो आपको CV जो टेम्पलेट है जिसके अकॉर्डिंग आपने CV बनानी होती है, ये वो टेम्पलेट है, ये उसकी हेडिंग्स हैं। एंड यू guys can clearly see on the 6th number that it has research, audit and all. So it's highly recommendable that you guys get yourself enrolled in any of the courses, do the research course and just do your research। आप ऑडिट कर सकते हो, ऑडिट तो होता भी आसान है और आप लोग थोड़े से टाइम में कर भी सकते हो, तो you guys can definitely do that as well। Research, okay, let me show you guys another। Yeah, so these are the platforms research के लिए basically, Google Scholar, PubMed and Consensus। Let me just show you how to आप लोगों को पता है कि गूगल स्कॉलर पे और इस सब पे आप लोग कैसे सर्च कर सकते हो? डू गाइस हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? यस मैम। Yeah, okay. If you guys know, then we can move forward. Okay. So these are the platforms where you can search for the articles that you want। अगर कोई भी टॉपिक आपके माइंड में, अगर कोई भी वर्ड आपके माइंड में है, just write on these platforms। Let me just show you quickly। Okay, I'm gonna write here। Okay, let's just move to Google Scholar first। You guys can see my screen? Yes, ma'am. Yeah, okay। So let's just search this one। So you guys can see मैंने सिर्फ एक टॉपिक डाला है और उसके सारे रिलेटेड आर्टिकल्स जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आ गए हैं। अगर आपने यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 2023 से अब तक कितने इस टॉपिक पे कितनी रिसर्च हुई है, वो आ जाएगी। 2020 ऑनवर्ड्स कितनी रिसर्चेज हुई हैं इस टॉपिक पे, वो सारा आ जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी वर्ड है, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप देखना चाह रहे हो कि मुझे बस आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है कि मैंने इस पे रिसर्च करनी है, जस्ट राइट दैट हियर और ये आपको उससे रेलेवेंट टॉपिक्स दे देगा कि जिस पे रिसर्च पहले जहाँ जहाँ हुई हुई है। सो यू गाइस कैन हैव एन आइडिया ऑफ कि कहाँ पे कौन सी रिसर्च हुई और मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट नो हाउ टू चेक थिंग्स हियर।
Okay, let's just proceed further. सो लिटरेचर रिव्यू के बाद पूरा आर्टिकल लिखना और वो सब मैम ने बताया जैसा कि वो एक डिफरेंट एक डिबेट है, वो एक पूरा एक हम उस पर वेबिनार चाहे दोबारा भी कर लेंगे। वो ये कि एआई टूल्स जो हैं बेसिकली वो कैसे हेल्प आउट करते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी बहुत कॉमन है, GPT-4 का पेड वर्जन है स्कॉलर एआई, उससे आप लिटरली उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसने तो रिसर्च आसान कर दी है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने रिसर्च में। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ उसको ह्यूमनाइज करना है फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। वहां से आप पूरा का पूरा कंटेंट लेते हो, उसको ह्यूमनाइज करते हो, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और मतलब बजाय इसके कि आप लाइब्रेरीज में जाके सर्च करो सब कुछ करो, इन प्लेटफॉर्म से वो सब कुछ काफ़ी काफ़ी ईजी हो गया है। सो हम डेफिनेटली उस पर भी आएंगे और उस पर डेफिनेटली वेबिनार बिल्कुल अलग से चाहिए होगा, क्योंकि वो काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें। जैसे कंसेंसस है, कंसेंसस भी इसी पबमेड की तरह ही है, पबमेड और गूगल स्कॉलर की तरह ही, लेकिन यहाँ पे आप अपना जो आपका एक स्टडी है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्नैप ले सकते हो, PDF आप उसका देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑल्सो आई लाइक टू मेंशन हियर, पबमेड जो है ये यूके में बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपने अपना कोई भी आर्टिकल पब्लिश कराना है तो मेक श्योर करें कि वो पबमेड रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में आप उसको पब्लिश कराएं। पबमेड रिकॉग्नाइज्ड जर्नल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो ये कि जैसे क्यूरियस है, क्यूरियस पबमेड रिकॉग्नाइज्ड एक जर्नल है। उसमें आप क्या करते हो कि आज जब आप क्यूरियस में अपना आर्टिकल पब्लिश कराते हो तो वो आफ्टर 6 वीक्स और 6 to 8 वीक्स में वो पबमेड पे आ जाता है। पबमेड क्या है कि यूके में बहुत रिकॉग्नाइज है, इसलिए क्योंकि जब भी आप जैसे आपने अपना CV बिल्ड किया है तो आपने उसमें बताया कि मेरी ये रिसर्चेज हैं, तो वो लोग डेफिनेटली चेकआउट करेंगे कि आपने कौन कौन से आर्टिकल में पब्लिश कराया, क्या कराया। तो आपका नाम सबसे पहले पबमेड पे डालेंगे, क्योंकि ये यूके बेस्ड है, यूके में इसको ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। गूगल स्कॉलर ये सब चीज़ें तो यूज़ होती हैं, लेकिन ये US वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो यूके है वहाँ पे पबमेड बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ होता है। NIH की लाइब्रेरी है, वो उन लोग ये लोग उनको काफ़ी प्रेफर करते हैं। इसी तरह वो पबमेड पे जाएंगे, आपका नाम एंटर करेंगे तो आपने जो क्यूरियस में के जर्नल में पब्लिश हुआ आपका आर्टिकल है ना, वो भी आपके पबमेड के साइट पे शो हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड एलिमेंट एज वेल कि आप अपना क्यूरियस में पब्लिश कराओ और वो पबमेड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो क्योंकि क्यूरियस में पब्लिश कराना रिलेटिवली ईजी भी है, सो यू गाइस कैन गो फॉर दैट एज वेल। उसके बाद जब हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने आर्टिकल तो लिखा हुआ है, हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम इसको किस में कहाँ पब्लिश कराएं, कैसे हम इसको पब्लिश करा सकते हैं, तो आप हमें ये बताएं। तो इसके लिए भी कुछ AI टूल्स हैं, जैसे कि जर्नल फाइंडर है। लेट मी जस्ट शो यू क्विकली जर्नल फाइंडर। You guys can see my screen, right? Where I'm searching for journal finder, you guys can see. मैम इट्स नॉट विजिबल टू मी, बाकी Yeah. सबको नजर आ रही है? No, ma'am. Okay, hold on. I will share with you. Can you guys see now? Yes. Yes, Okay. ma'am. Yeah, so here I will write journal finder. This is an AI tool. ये वाला ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है अपने आर्टिकल का, वो आप यहाँ पे डालोगे और वो आपको उसके रेलिवेंट जितने भी जर्नल्स जहाँ आप लोग ये आर्टिकल पब्लिश करा सकते हो, वो आपको उसके रेलिवेंट जर्नल्स प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा आप यहाँ पे कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे अपने जो आपका आर्टिकल है, जो आपने कीवर्ड्स उसके डिसाइड किए हुए हैं, यहाँ पे आप वो कीवर्ड्स डालोगे और वो आपको आर्टिकल आपको रेलिवेंट जर्नल बता देगा जिसमें आप पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, गूगल स्कॉलर भी, मुझे लगता है पहले ये भी नहीं नजर आया होगा। सो दिस इज गूगल स्कॉलर, कैन यू गाइस सी? दे दे ये, तो ये सारे 2020 ऑनवर्ड्स के हैं हमारे पास आर्टिकल्स। मैम ने आपको बताया भी है कि यहाँ पे कैसे आप अपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, वो यहाँ पे मैम ने आपको बताया गूगल स्कॉलर पे, डॉक्टर कायनात ने। सो या दिस इज
दैट्स इट। और दूसरा HGRS की वेबसाइट है, लेट मी जस्ट शो यू गाइस दैट एज वेल। HGRS क्या है बेसिकली, ये एक HEC रिकॉग्नाइज जर्नल का एक उन्होंने पूरा एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप अपना जर्नल का ISSN नंबर डालोगे तो आपको बता देगा कि ये जर्नल जो है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। जर्नल का नाम लिखोगे या ISS, ये नंबर होता है जर्नल का, किसी भी जर्नल का। यहाँ पे अगर आप वो लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये HEC रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। तो ये भी एक AI टूल है बेसिकली, वेबसाइट है एक ये। तो यहाँ आप जाके देख सकते हो कि, और ये यहाँ पे भी पता चल जाता है कि आर्टिकल जो है ये W कैटेगरी का, X कैटेगरी का, Y कैटेगरी का। अच्छा, ये एक डिफरेंट कैटेगरीज हैं जर्नल्स की। आपको इनका पता है WX और Y कैटेगरी का? यू गाइस हैव एनी आइडिया? मैम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। या ओके, बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर होता है किसी भी जर्नल का, और जर्नल की कैटेगरीज होती हैं। सो जैसे WX और Y कैटेगरी होती है, जिसमें W बीइंग द हाईएस्ट कैटेगरी एंड Y बीइंग द लोएस्ट कैटेगरी। सो ये जो है, ये जो HGRS है बेसिकली, यहाँ पे जब आप जर्नल का नाम डालोगे तो वो आपको आगे भी बता देगा कि ये जर्नल जो है ये कौन सी कैटेगरी का जर्नल है, X कैटेगरी का है, Y कैटेगरी का, W कैटेगरी का, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है वो ये भी बता देगा आपको। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात जो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आपने आर्टिकल राइटिंग करनी है, आपने पहले उसका जर्नल सोच लेना है कि आपने किस जर्नल में उसको पब्लिश कराना है, क्योंकि सब जर्नल्स की गाइडलाइंस डिफरेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपने एक आर्टिकल लिख लिया बगैर ये सोचे कि आपने किस जर्नल में इसको पब्लिश कराना है। तो जब आप एक आर्टिकल लिख लेते हो और जब वो पब्लिश करने के लिए आप उस जर्नल में भेजते हो तो वो उसकी गाइडलाइंस कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं और आपने अपना आर्टिकल कंप्लीटली डिफरेंट लिखा होता है, तो वो आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। सो रिजेक्शन से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप पहले जर्नल की गाइडलाइंस देखो, ऑथर गाइडलाइंस उन्होंने दी होती है। लेट मी जस्ट शो यू हियर, क्यूरियस हम देख लेते हैं। जैसे ये ISSN नंबर आपको नजर आ रहा है, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन हियर? यस मैम। एनीवन कैन कंफर्म? या ओके, सो ये जो ISSN नंबर है ये एक किसी भी जर्नल का नंबर होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने HGRS पर डालना है। वो आपको बता देगा कि ये HEC रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। ये वो जर्नल का नंबर है। आप जर्नल का नाम भी डाल सकते हो, लेकिन ये नंबर भी डल सकता है। उसके अलावा ये है ऑथर गाइडलाइंस। किसी भी आर्टिकल की आप किसी भी जर्नल की आप ऑथर गाइडलाइंस पहले पढ़ो कि उनको चाहिए क्या 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 चीज़ें। जैसे कुछ हैं, कुछ जर्नल्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं APA, कि आपने रेफरेंसेस जो है वो APA में डाले हों। कुछ कुछ जो है वो नहीं प्रेफर करते, वो वैंकूवर स्टाइल प्रेफर करते हैं। सो आपने पहले ये देख लेना है आर्टिकल भेजने से पहले किसी भी जर्नल में कि उसकी गाइडलाइंस क्या कहती हैं। जब आपका आर्टिकल उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका आर्टिकल उस जर्नल से रिजेक्ट हो जाए। सो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज़ हाईली प्रेफरेबल कि आप पहले उसको देख लो कि उसकी गाइडलाइंस क्या हैं और फिर अपना आर्टिकल लिखो। Do you guys have any question till now? You guys can raise your hand. Yeah, okay. So yeah, that's all. Thank you for being here. और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और फॉर एक और चीज़, एक मिनट, मैं आपको एक वो भी दिखा देती हूँ जो मैम कह रही है ना, इंटरनेशनल जर्नल्स की लिस्ट है एक, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। Can you guys see the new screen now? इंटरनेशनल जर्नल्स वाली। जी मैम। ये सारे इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जहाँ पे आप सर्च, ये देखो आगे उन्होंने Y कैटेगरी W कैटेगरी मेंशन की हुई है। ये 2.1 2.6 ये सारे इनका इम्पैक्ट फैक्टर है कितना है क्या है। कुछ ऑब्वियसली पेड भी हैं, जैसे इन्होंने नीचे दिया हुआ है 600 पाउंड और इस तरह इनके चार्जेस भी हैं। ये इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, यहाँ से आप जाके जैसे मैम ने बताया कि आप इसको रिव्यू कर सकते हो, आर्टिकल्स को देख सकते हो कि अभी रिसेंट इनके जो एडिशन आया है उसमें कौन कौन से हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं,
उनको देखो, वहां से अपना थोड़ी सी गाइडेंस लो, तो आपको वहां से भी हेल्प आउट हो जाएगा कि आपने कौन सा टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है। बेसिकली टॉपिक अगर आप किसी को नहीं समझ आ रही तो इन जर्नल्स को जाओ, इन जर्नल्स के पे जाओ, जिनको देखो लेटेस्ट एडिशन में कौन कौन से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं, उनको देखो और उनमें से फिर अपना सोचो कि आप इनमें से क्या कर सकते हो अपने सेटअप में रहते हुए। जो आप अपने सेटअप में रहते हुए कर सकते हो, जस्ट गो एंड डू दैट, बिकॉज इट्स हाईली गोना हेल्प यू इन योर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, और ऑब्वियसली in your CV while later on when you apply for NHS jobs, because PLAB अब जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव एक हो गया, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। सो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश करे। आपकी ऐसी रिसर्चेस वगैरह होंगी तो आप ऑब्वियसली आपको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप उनके लिस्ट में जिन लोगों ने ये सब काम नहीं किए हुए उनको आप पीछे छोड़ के उनके टॉप लिस्ट पे आ जाओगे। सो ऑब्वियसली देर गोना प्रेफर यू मोर ओवर दोज पर्सन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, जिनको रिसर्च का कुछ भी नहीं पता। सो इट्स हाईली रिकमेंडेबल कि आप अभी से इसको देखो और स्टार्ट डूइंग रिसर्चेस एंड ऑडिट्स। जो भी आप अपने सेटअप में रहते हुए कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। कोई भी इनिशिएटिव लो, कोई भी मेंटोर सेलेक्ट करो, वो आपको गाइड करे। तो या इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन द फ्यूचर। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? Okay, Minahil, can you please tell me? Yes, ma'am. Guys, अगर आपके कोई questions हैं तो you can either raise hand or use the chat box. ये opportunity है आप लोगों के पास, so please avail it. Okay, so Aliza is saying where can we look for mentors, seniors and professors? Aliza, आप कौन से कॉलेज से हो? RLMC, ओके। RLMC में तो आप लोगों के मेंटोर्स असाइन कर दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू गाइस कैन ऑलवेज कम टू DME, वी वुड लव टू हेल्प यू गाइस इन एनी रिगार्ड। अगर आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग, अगर आपको टॉपिक में कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो यू गाइस कैन ऑल्सो कम टू DME एनी टाइम। मैं वहाँ पे डॉक्टर कायनात मैं हूँ, वी विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस इन दैट। उसके अलावा मेंटोर बेसिकली कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि जो आपको, जिसका काम आपको अच्छा लग रहा है। सो यू गाइस कैन गो टू दैट पर्सन, एंड आई एम श्योर कि RLMC में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रिफ्यूज करेगा हेल्प करने में। सो यू गाइस कैन गो टू एनीबडी हु इज जस्ट वेरी, हु सीम्स वेरी impressive to you. You guys can go to that person. How to find audit opportunities? Okay, so let me just share with you guys some platform, जैसे कि हाई यील्ड यूके एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। Can you guys see my screen? Hi, you'll look here. अभी आई गेस कनेक्टिविटी इशू है तो ये खुल नहीं रही। बेसिकली हाई यील्ड यूके एक प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ये लोग क्या करते हैं कि ये आपको 3 मंथ्स का या इसी तरह डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं रिसर्च पे। तो जो आप जब ये कोर्सेज कर लेते हो उनमें ये आपको एक मेंटोर असाइन कर देते हैं। वो मेंटोर क्या करता है, वो मेंटोर आपको टॉपिक से लेके आपकी रिसर्च पब्लिश करने तक आपको हेल्प आउट करता है कि कैसे आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, कौन सा आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, कैसे आपने इसको पब्लिश कराना है, कौन सी चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए, वो सब आपको वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। हाई यूके, you guys can check that out as well. Let me just write you in the chat box.
हाँ ये लुक है, यू गाइस कैन जस्ट चेक आउट देयर वेबसाइट, इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, तो आप इनको जरूर देखें। और यहाँ पे और ये लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और आई थिंक अभी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हेल्प आउट काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप लोग इसको देखो, हाई यील्ड लुक को। और इनके रिसर्च के कोर्सेज हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हो। जो पूछ रहे थे कि कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कहाँ से शुरू करें, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट एज वेल। Can we start preparation during medical school? Yeah, definitely you can start. लेकिन बस ये है कि आप लोग दे उसके फाइनल ईयर के बाद सकते हो। स्टार्ट कैसे कर सकते हो कि जो फाइनल ईयर है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लो। फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वही बेसिकली टॉपिक्स होते हैं जो आपको प्लैब में कवर करने होते हैं। प्लैब वन में सारा फाइनल ईयर का सिलेबस होता है। तो फाइनल ईयर बहुत अच्छे से कर लो, और राइट आफ्टर द और फाइनल ईयर के एंड पे अपना ओईटी दे दो। और उसके बाद हाउस जॉब के शुरू में या हाउस जॉब के मिड में जहाँ भी आपको सीट मिलती है, जब की भी सीट मिलती है, आप उसको दे दो। आपका नॉलेज फ्रेश फ्रेश होगा, आपको बहुत ज़्यादा शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको रिवाइज करना है और यू आर जस्ट गुड टू गो। What are the charges for that? Yeah, you are asking about high yield. Okay, I think it's about 80 pounds, something like that. तो मुझे लगता है कि ये इट्स स्टिल ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी इतने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। सो अगर 20-25 हज़ार में अगर हमारी एक रिसर्च हमें पता लग रहा है कि हमने कैसे रिसर्च करनी है, बेसिक नो हाउ हमें हो रही है, सो आई गेस इट्स नॉट अ वेरी बैड आइडिया। यू गाइस कैन चेक दैट आउट एज वेल, बट इट्स अप टू यू। अगर आपने नहीं ये करना तो यू गाइस कैन फाइंड अ मेंटोर जिसको रिसर्च का पता है, या फिर आपने आपने अगर कोर्सेज करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अल सादिक वर्चुअल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप रिसर्च के रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। प्रॉपर 3 मंथ्स का कोर्स है, वो भी 20,000 का होता है। अगर आप वो कर लोगे तो वो आपके पोर्टफोलियो में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी टेम्पलेट दिखाया सीवी का, यूके का, तो वो आपको सीवी में भी हेल्प आउट करेगा लेटर ऑन। और अभी भी अगर आप वो कर लोगे तो आपको रिसर्च करने में आसानी होगी। मैंने वो कोर्स करने के बाद ही अपना आर्टिकल जो पब्लिश कराया, पहला आर्टिकल। उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि रिसर्च कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे करते हैं। मुझे रिसर्च का ABC भी नहीं पता थी कैसे करनी है। मैंने वो कोर्स किया इस टाइम में जब मैंने अपना प्लैब 1 बुक कराया हुआ था, उस टाइम में मैंने वो कोर्स किया, और फिर मैंने अपना एक आर्टिकल पे काम करना शुरू किया, और फिर मैंने वो पब्लिश कराया। सो या यू गाइस कैन डू दैट एज वेल। ये स्लाइड्स विल बी शेयर्ड, मैं मिनाहिल को ये दे दूंगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगी आपको। या आमना इनायत, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? या यू कैन गो अहेड। Yes, ma'am. I wanted to ask कि I am in fourth year right now. तो क्योंकि मुझे प्लैब के मतलब I want to start my प्लैब preparation early. तो फोर्थ ईयर में मतलब what should I do अभी like for specifically प्लैब preparation के लिए मैं अभी से कोई ऐसी बुक्स या कोई रिसोर्सेज हैं जो मुझे यूज़ करना शुरू कर देने चाहिए ताकि मुझे आगे आसानी हो। फोर्थ ईयर में कर सकते हो आप लोग। फोर्थ ईयर में भी कम्युनिटी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिटी के कुछ टॉपिक्स हैं प्लैब 1 में भी। प्लैब 1 में मैं आपको ऐसा करूँगी, मैं ग्रुप में ना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूंगी, जो जो प्लैब 1 के लिए आपको जिन जिन टॉपिक्स की आपको ज़रूरत है। फोर्थ ईयर की भी कुछ टॉपिक्स हैं उनमें, तो आप फोर्थ ईयर के टॉपिक्स जो आप कर रहे हो आप उनको अच्छे तरीके से कर लो, तो वो आपको प्लैब 1 में भी हेल्प आउट करेंगे। जैसे कम्युनिटी से डिजीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं कम्युनिटी की, वो हैं प्लैब 1 में। और वो तब बाद में आपको करनी बहुत मुश्किल लगती है, अगर आप साथ साथ कर लो तो वो, और आपको पता हो कि ये प्लैब 1 में आना है, तो आप ऑब्वियसली उसको ज़रा फोकस्ड होकर करोगे, ज़्यादा अच्छे से करोगे। तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी पूरा सिलेबस, पूरे टॉपिक्स हैं इसके। वैसे तो ब्लूप्रिंट GMC वेबसाइट पे भी है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप मुकावी में, था वो। तो आप उसको भी देख सकते हैं। Okay, thank you so much, ma'am. Yeah, okay, welcome. Do we have any other question? Any other questions तो आप लोग पूछ लो, otherwise we can wrap it up, I think. Yeah. So आप में से जो comfortable है kindly अपना कैमरा ऑन कर दें, we'll take a quick photo, उसके बाद we'll wrap it up.
So I'll take the photo in like 3, 2, 1, and I'll. Yeah, just say 3, 2, 1. We'll just post any random post. Just make the peace sign or whatever. You guys Okay. like. Okay. So in 3, 2, 1. Yeah, we are done. Thank you, everyone. Okay, thank Thank you you so everyone much. for joining in. Thank you. Thank you so Thank you much. so much, Thank you, Dr. Dr. Arisha. Thank you, Dr. Kainat, for such an amazing session. You're We are welcome. very grateful to you, ma'am. Thank you so Yeah. much, ma'am. And thank you to the participants as well. We'll shortly share the post-evaluation form. You guys have to fill that in order to receive the certificates. So thank you so much. Thank you, ma'am, once again. It was a splendid session. Thank you so much. Thank you. Okay, ji, Allah Thank Hafiz. you. Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.